ایکسپورٹرز کو ریلیف مل گیا، لوکل انڈسٹری مالکان نے بھی ریلیف کی آس لگا لی۔ صدر کاٹن پاور لومز ایسوسی ایشن اعجاز ناگرہ کہتے ہیں برآمدات میں بہتری کے لیے پوری سپلائی چین بہتر کرنا ہوگی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل سے جانتے ہیں اپنے نمائندہ محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، بتائیے گا لوکل انڈسٹری کے کیا مطالبات ہیں؟ جی بالکل، حکومت پاکستان وزارت خزانہ کی جانب سے ایکسپورٹ انڈسٹری کو جہاں 20 روپے یونٹ فیکس بجلی دینے کا اعلان کیا، تو وہاں لوکل انڈسٹری کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ہم بھی اس احتجاجی مطالبے کے اندر موجود تھے کہ بجلی سبسٹائز یا سستی جو ہے پرووائڈ کی جائے۔ تو لوکل انڈسٹری بھی اس وقت خاص بحران کے اندر ہے، ہمیں کچھ سبسٹائز ریٹ جو ہے اس کا مطالبہ کیا گیا۔ آل کاٹن پاکستان پاور لوم ایسوسی ایشن کے مالکان جو عہدیدار جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر ہیں اور ساتھ سابق سینئر نائب صدر جو کہ اس وقت چیمبر کے ایگزیکٹو ممبر موجود ہیں۔ ناگر صاحب، کیا اس حوالے سے آپ ڈیمانڈ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ایک درینہ مطالبہ تھا جو ابھی ریسنٹلی وزارت خزانہ کی طرف سے چلا آ رہا تھا، تو میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے ساغ ڈار صاحب اور اس کے بعد ایپٹما، پی ٹی آئی اور پی ایچ ایم اے۔ ادھر پریس کانفرنس سب سے پہلے بارش کا پہلا قطرہ بنے پی ایچ ایم اے اور تمام ایسوسی ایشن، آل پاکستان کاٹن پاور لوم ایسوسی ایشن، جس نے اپنا کردار ادا کیا کہ ایک جو مسئلہ ریزالو ہوا ہے، اس سے سب سے زیادہ جو اس میں کہ 5 سیکٹر جو ہیں نا ایکسپورٹ اورینٹڈ، اس کی وجہ سے جو ہمارا زر مبادلہ فارن چینج آئے گی اور ملک ترقی کرے گا۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور سلام پیش کرتا ہوں ساغ ڈار صاحب کے ویژن کو اور ان کی جو قائدانہ صلاحیت ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ ہمارا ریزالو کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سیکٹر نگلیکٹ ہو رہا ہے، لوکل پاور لوم جو ہیں، وہ ایک بڑا جو چین بنتی ہے ایک پورے پاکستان کی معیشت کے لیے جو پاور لومز کی ہے، تو اس کو بھی ان کو ساتھ میں کوئی انسینٹو دینا چاہیے تھا۔ ایک تو وہ 3% کا وہ جو ایکسٹرا پے کرتے ہیں سیل ٹیکس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کا 50 روپے پر یونٹ کے حساب سے بجلی کا بل پے کرتے ہیں۔ تو میں گورنمنٹ آف پاکستان کو، خصوصاً ساغ ڈار صاحب کو، کہ ان کو بھی اس لوپ میں لیا جائے اور ان کے مسئلے حل کیے جائیں، وہ بھی پاکستان کے مفید شہری بن سکیں اور ٹیکس دے سکیں۔ ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ میں حاضر ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ کہ بیٹھ کے ان کے ساتھ نیگوسیشن کی جائے اور کوئی ایسا ریٹ طے کیا جائے جو سب کو قابل قبول ہو۔ عامر رضا صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ بلد کرنے کے لیے۔ اندرون فیصل آباد شہر میں طارق آباد اور نگہبان پورہ سمیت تمام پھاٹک ٹرین کی آمد سے 20 منٹ پہلے بند کیے جانے لگے۔ شہریوں کا گزرنا محال، پھاٹک زائد دیر بند رہنے سے مشکل پڑ رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ اویس علی سے۔ جی اویس، کہیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد شہر کے اندرون میں واقع طارق آباد پھاٹک، نگہبان پورہ پھاٹک اور منصور آباد پھاٹک کو جو ہے وہ ٹرین کی آمد سے 20 منٹ پہلے بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک اکثر یہاں پر جام ہو جاتی ہے اور شہریوں کو گھنٹوں جو ہے وہ لائنوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس والے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ پھاٹک جو ہے وہ یہاں پر بند کر دیا جاتا ہے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کتنی دیر پہلے بند ہوتا ہے؟ ادھر تو 20 منٹ پہلے پھاٹک بند کر دیتے ہیں، جس سے اتنا کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور دھوپ میں، گرمی میں لوگ جر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اسکول کا بچوں کا ٹائم ہوتا ہے، ٹرین ابھی اسٹیشن پہ ہوتی ہے اور یہ پہلے 20 منٹ پہلے بند کر دیتے ہیں، وہ سلولی آتی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ اگر اس سائڈ پہ آ رہی ہو، لاہور سے آ رہی ہو یا کہیں سے بھی آ رہی ہو، ادھر ابھی 3 پھاٹک دور ہوتی ہے، یہ پھاٹک پہلے بند کر دیتے ہیں۔ 20 منٹ اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر جو شہری موجود ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹرین کی آمد سے جو ہے وہ 20 منٹ پہلے پھاٹک بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ جام ہو جاتی ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہری کو۔ پھاٹک جلدی بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ اویس علی اب تفصیلات کے لیے۔ تاندھی حوالہ کے نواحی علاقے دھوپ سڑی میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد زیان اور بلڈنگ ڈونر میاں عثمان تمیر اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں گلریز اقبال بھٹی سے۔ جی گلریز، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, तांदलेवाला के प्राइमरी स्कूल दुबसड़ी का जो है वो फंड रेजिंग के जरिए नई बिल्डिंग का जो है वो इफ्तिताह किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में जो है CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने शिरकत की है। इसी हवाले से दीगर महकमा तालीम के अफसरान उन्होंने भी शिरकत की है। मैं इस वक्त उस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद और मेरे साथ CEO एजुकेशन अली अहमद सियान मौजूद है। सर, ये बताइएगा फंड रेजिंग के जरिए स्कूल के नए कमरों की जो है वो आज बिल्डिंग का इफ्तिताह बाकायदा कर दिया। कितने स्कूल जो हैं, कितनी स्कूल में नई बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दुबसड़ी में खड़ा हूँ। यहाँ पर 2 कमरे क्लासरूम के तौर पर, एक लैब और एक ऑफिस जो है वो बनाए गए हैं अपनी मदद आपके साथ। ये उस्मान तनवीर साहब जो हैं इन्होंने बुनियादी रोल प्ले किया है और इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा फंडिंग करके इसको मुकम्मल करवाया है। इस तरह से 2 और स्कूल हैं जिसमें इसी तरह से ही 2 क्लासेस, बरामदा और ऑफिस वगैरह जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये हमारी कैंपेन जो है वो पिछले कई सालों से चल रही थी, जिसमें हमारे DOs, डिप्टी DOs, AEOs जो हैं वो प्रॉपर तरीके से कैंपेन चला रहे थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसका समर जो है वो मिलना शुरू हो गया है कि जिसमें हमने कुछ लोगों से स्कूल के लिए अगर जगह कम है तो ज़मीन जो है वो ली। अभी एक स्कूल में जाएंगे जहाँ एक कनाल ज़मीन जो है वो स्कूल के नाम की गई है। इस तरह से कमरे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो ये एक नंबर ऑफ सीरीज़ है। तांदलेवाला तहसील में अगर देखा जाए तो इस वक्त 51 क्लासरूम जो हैं वो बन चुके हैं। तकरीबन ये आप यूँ कह सकते हैं कि 50 स्कूल्स के अंदर जो है ये काम इस तरह से हो रहा है अपनी मदद आपके तहत और फंड रेजिंग के साथ, डोनर की मदद के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये डोनर्स की भी बड़ी मेहरबानी है और जो भी स्कूल के ऊपर जो पैसा लगाता है अल्लाह ताला उसका कबूल भी करेगा और उनका तालीम के साथ प्यार, मोहब्बत और ताल्लुक जो है वो भी बढ़ेगा। इस तरीके से हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको हम कामयाब बना सकेंगे कि उनको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेशन भी मिले और उनकी प्रॉपर तरीके से तालीम और तरबियत भी हो सके। जी, इस वक्त जो है वो मेरे साथ डोनर तनवीर साहब भी मौजूद हैं। आपने बड़ा अहम काम किया है बच्चों के लिए यहाँ पर सदका जारिया क्लासरूम्स जो है उनका अतिया दिया है। आप इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसे है कि तालीम जो है ना वो सबके लिए ज़रूरी है। जो इस बात पे अमल करते हैं वही कौमें और माशरे तरक्की करते हैं। मेरा बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल कर सकूं, लेकिन कुछ एक नामसाद हालात की वजह से मैं तालीम अपनी जारी नहीं रख सका। लेकिन मैं जब इन बच्चों को पढ़ता हुआ देखता हूं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं कहता हूं जी कि मैं शायद इनके रूप में मैं खुद इल्म हासिल कर रहा हूं। और कैसे सियाने कहते हैं जी कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया गुलरेज। फैसलाबाद जुमा बाजार में खवातीन की जोरों शोर से शॉपिंग जारी है। गर्मियों का मौसम अब तक बरकरार, लेकिन खवातीन ने अभी से बच्चों की सर्दियों के कपड़ों की खरीदारी का आगाज कर दिया। खवातीन कहती हैं सर्दियों से कबल ही रेट्स डबल हो गए हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा, खवातीन की शॉपिंग तो जारी है, मजीद क्या तफसील है? बिल्कुल, मैं इस वक्त जुमा बाजार में मौजूद हूँ। गर्मियों जो है वो अभी तक बरकरार है और सर्दी का मौसम जो है अभी तक उसकी शुरुआत नहीं, आमद नहीं हुई, लेकिन खवातीन ने सर्दियों के कपड़ों को अभी से खरीदना शुरू कर दिया। क्योंकि खवातीन कहती है कि सर्दियों के आगाज़ में बहुत महंगे हो जाते हैं। वो मेरे साथ एक खातून मौजूद, मजीद इनसे जानते हैं। जी, सर्दियों के कपड़े जो है मार्केट में तो आ गए, तो इनके रेट्स में आप क्या फ़र्क देखते हैं कि पिछले साल? इनके रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पहले से यानी कि डबल हो गया है और हर चीज़ ही महंगी है। तो पहले जो कपड़े का जो रेट आप देख रही थी कि कितने का मिल रहा है, अब वो कितने का मिल रहा है? वो पहले तकरीबन 500-600 का मिल जाता था, लेकिन अभी 1000-1200 रुपये का मिल सकता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो कपड़ों का रेट है, अभी सर्दियों की जो आमद है वो स्टार्ट नहीं हुई है, गर्मियों का सीज़न है, अभी से कपड़े खरीदने इसलिए आए थे कि रेट जो है वो मुनासिब में मिल जाएंगे कपड़े, लेकिन कपड़े जो है अभी भी डबल कीमत पे हो गए। 500-600 का जो सूट है वो 1000-1200 से कम का नहीं मिल रहा। तो हुकूमत से बखसूस अपील है इंतजामिया से कि सिर्फ खासी तो। बहुत शुक्रिया खिलजा तफसीलात के लिए। बुआना महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में सस्ते सहूलत बाजार किसी नेमत से कम नहीं। बुआना में जुमा के दिन सस्ता बाजार लगाया जाता है, जिसे जुमा बाजार के नाम से जाना जाता है। जुमा बाजार में मर्द और खातीन की कसीर तादाद मौजूद है जो कपड़े, जूते, बर्तन, कंबल, रजाइयाँ खरीद रहे हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में सस्ते सहूलत बाजार शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। बुआना में हर जुमा को सस्ता सहूलत बाजार लगाया जाता है, जिसको जुमा बाजार भी कहते हैं।
آج اس جمعہ بازار کے اندر مرد و خواتین کی کثیر تعداد موجود ہے جو کہ یہاں پر کپڑے، جوتے، برتن، کمبل، رضائیاں اور دوسری ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہیں وہ خریداری کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا آج آپ یہاں بازار میں ہیں، کیا خریدنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں کے جو ریٹ ہیں وہ کیا چل رہے ہیں؟ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 1600, ਇੱਥੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ 800 1000 ਰੁਪਏ 6-700 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੂ ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਐਨ ਕੱਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਜਨਾਬ 400 ਤੋਂ 12 ਪੀਸ ਮਿਲਦੇ ਦਰਜਨ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 100 ਦੇ 150 ਦੇ 12 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਵੇਖ ਲਓ, 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ 600-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ इंशाअल्लाह किड़े भी आन जी बिस्मिल्लाह जुम्मा बाजार। और बहुत शुक्रिया फखर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को में बड़े पैमाने पर उखाड़ बिछाड़ जारी है। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन नजर मोहम्मद को जनरल मैनेजर फेस्को का इजाफी चार्ज दे दिया। चीफ इंजीनियर मोहम्मद नवाज को जी कस्टम सर्विसेज का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डीजी एडमिन मोहम्मद असर अयूब को डायरेक्टर जनरल HR फेस्को तैनात कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को में बड़े पैमाने पर अफसरान की अखाड़ बछाड़ का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी वाले से चीफ इंजीनियर ऑपरेशन नजर मोहम्मद आपको जनरल मैनेजर फेस्को का इजाफी चार्ज दे दिया गया है और चीफ इंजीनियर मोहम्मद नवाज कुल्ला को GM कस्टमर सर्विसेज का जो है वो इजाफी चार्ज दिया गया है। डीजी एडमिन मोहम्मद असर अयूब को डायरेक्टर जनरल HR फेस्को जो है वो तैनात किया गया है और गुलाम फरूक चीफ इंजीनियर TS फेस्को को डायरेक्टर जनरल एडमिन फेस्को का इजाफी चार्ज दिया गया है। इसी सिलसिला में उमर हयात गोंडल को चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट PMU फेस्को को डायरेक्टर जनरल IT लगा दिया गया है। मोहसन सरफराज डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट फेस्को को डायरेक्टर ऑडिट फेस्को का इजाफी चार्ज दे दिया है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद अफसरान को इजाफी चार्ज, एक्टिंग चार्ज और पोस्टिंग का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया वैसे ही आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए गलियों को सजाने का सिलसिला जारी है। ब्लॉक शाह में भी गलियों को सजा दिया गया, चिरागा भी होगा। आपको बता रहे हैं जंग में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए गलियों को सजाने का सिलसिला जारी है। ब्लॉक शाह में भी गलियों को सजा दिया गया, चिरागा भी होगा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए गलियों को सजाने का सिलसिला जारी है। ब्लॉक शाह में भी गलियों को सजा दिया गया, आशिकाने रसूल चिरागा भी करेंगे। आपको बता रहे हैं जंग से जहां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए गलियों को सजाने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, कैसा जोश व जज्बा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, फरजंदीन इस्लाम में इस ईद को लेकर खासा जो है वो जोश व जज्बा दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि ये ऐसी ईद है जहां पर घरों को तो सजाया जाता ही है, इसके साथ साथ गलियों को, बाज़ारों को और जहां जहां मुमकिन हो सके वहां पर चिरागा किया जाता है। हम इस वक्त झंग में मौजूद हैं और फरजंदीन इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस ईद की तैयारी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा की जानब से ये बाज़ार सजाया जाता है। तकरीबन ये 1982 से हम सजा रहे हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका से हमारा मोहब्बत का इजहार है और हमारे बुज़ुर्ग पहले सजाते थे, अब हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे साथ डील कर रहे हैं। यह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारे आका का दिन है जो हमें सबको मिलकर मनाना चाहिए। ये मिलकर जो है वो दिन मनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस दिन के हवाले से? यही 1982 से जारी है, हर साल होता है, ऐसे मजमू बढ़ता जा रहा है। रौनक मेला 3 टाइम लंगर चलता है, यहाँ पूरे 2 रात हैं, 2 दिन चलता है प्रोग्राम। अच्छा, आप बताएं, रात को चिरागा भी होता है, यहाँ पे लाइटिंग का भी इंतजाम? लाइटिंग का इंतजाम भी होता है। ये अल्लाह पाक की रहमत है, रहमत अल आलमीन की रहमत के सदक़े में ये सारा कुछ अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है। ये उनकी अता है, हम हर साल 1982 से लेके अब तक ये मना रहे हैं। ये सारी खुशियाँ ये उन्हीं की हैं
उन्हीं के सदके हम मना रहे हैं। ये वजह तख्लीक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनका कहना है कि 40 साल हो चुके हैं, गलियों को बाज़ारों को जो है वो सजाया जाता है और इसके ज़रिए मजहबी हम आहंगी का सबूत भी दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि फर्जंदान इस्लाम जो है वो इस खुशी में शरीक हों। इनका कहना है लंगर का एहतमाम होता है, सूरज ढलते ही इन बाज़ारों में, इन गलियों में जो है वो लाइटिंग होगी और एक खुशी का समाज। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में मजहबी जोशो खरोश के साथ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जारी हैं। बाजारों में सजे स्टॉल से लोग आराइशी सामान की खरीदारी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा तफसीलात से मुतालिक। जी, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए शहरियों का जो मुख्तलिफ फैंसी स्टॉल लगाए गए हैं, जो परचम नालैने मुबारक वाले फरोख्त किए जा रहे हैं, बर्फी कुमकुमे हैं, दीगर जो सजावटी सामान है वो खरीद रहे हैं। गलियों बाज़ारों को सजाया जा रहा है। इस वक्त हम चिन्योट के मेन बाज़ार में मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं कि किस तरह वो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने जा रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या क्या इस दफ़ा बाज़ार में लगाया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि जो आप लोग यार इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे बच्चों की शादियां हो या कोई फंक्शन हो तो हम इतना खर्चा कर देते हैं। ये हसनैन करीमैन के नाने का जो है आमद है, सरकार की आमद है, जिसके वसीले ने अल्लाह ताला ने हमें अपने गले लगा लिया। काम हमारे अच्छे नहीं हैं, ये हम फूल खरीद रहे हैं, झंडियाँ खरीद रहे हैं, सरकार की खुशी मना रहे हैं। यही हमारी ईमानी कुव्वत है, यही हमारी ईमानी ताकत है। मैं तकरीबन जो ये सब लोगों को ये दावत देता हूँ कि आओ यार गलियाँ सजाएं, महफिलें करवाएं, दरूदो सलाम पढ़ें उन पे ऊपर। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, मैं अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुसल्लम पे दरूद पाक पढ़ के भेज रहा हूँ, आप भी भेजें। तो खुशकिस्मत है हम मुसलमान कलमा को कि अल्लाह ताला ने हमें वो नबी दिया है जिसके बाद नबूवत ही बंद हो गई। बिल्कुल जी, दरूद पाक से बड़ा तोहफा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक सिंह में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत भरपूर अंदाज से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। गली गली मोहल्ला मोहल्ला महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मुबशिर हसन नकवी से जानते हैं। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोबा टेक सिंह में भी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। स्कूलों कॉलेज में अब मुख्तलिफ महफिल मिलाद का एहतमाम किया जा रहा है। गलियों और मोहल्लों को सजाया गया है। तहम आज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में भी महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें तालबात की जानिब से जो है वो हदिया नात भी पेश किया। इसी हवाले से कॉलेज की प्रिंसिपल निगर ताहिर से बात भी करते हैं और जानते हैं। मैडम बताइएगा, आज के हवाले से आपने मिलाद का भी एहतमाम किया, इससे पहले आप लोगों ने मुकाबलों का इनकाद भी करवाया था। जी, हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक। तो इस सिलसिले में पहले नात और किरत के कंपटीशन हुए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पीचेस कंपटीशन हुआ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा रहबरे इंसानियत टॉपिक था। और अब डिवीजन लेवल पे इंशाल्लाह हो गया है वो मुहस्सिन इंसानियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ बहसियत मुहस्सिन इंसानियत। आज जुम्मतुल मुबारक है और हमें पूरे पंजाब में हमें 2 जुम्मे को कहा गया था। एक पहला जुम्मा था, उस दिन हमने स्पीच कंपटीशन किया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेज किया गया। और आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टोबा में भी हम मिलाद शरीफ मुनक्कद कर रहे हैं, जिसमें तालिबात नात शरीफ है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में के मुख्तलिफ पहलुओं जिसपे हम। मुबशिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद की जानिब से वासा अमला और PTI खवातीन विंग के लिए मिलाद ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा मिलाद ज़ियाफ़त के बारे में। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में वासा ऑफिस में भी वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद की जानिब से मिलाद ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया है, जिसमें न सिर्फ वासा अमला बल्कि PTI खवातीन विंग जो है उसने भी शिरकत की है। शेख शाहिद जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, 12 रबीउल अव्वल की आमद है और आमद सरकार पर हर जगह महफिल मिलाद मुनक्कद की जाती है, ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کوئی میڈیا میں آئے، کیونکہ یہ تو انسان کے اندر کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے سرکار کو خوش کرنا ہے۔ بیسیکلی اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے ہی انسانیت کی خاطر ہیں، اور جو ہم یہ توام کرتے ہیں، جو نیاز ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں کہ مخلوق خدا کو یہ لنگر بانٹے جائیں اور لوگ خوش ہوں، اور یہ صوم و صلات کی محفلیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے جتنا بڑھ چڑھ کے اپنے جتنے بھی آپ کے پاس وسائل ہیں ان کو بروئے کا لاتے ہوئے اپنے گرد و نواح، اپنے عزیز و کارم میں جتنے جہاں بھی آپ کو ملیں مستحق لوگ، تو ان کی خدمت کی جائے۔ PGI خواتین ونگ کی جانب سے میلاد ضیافت میں شرکت کی گئی ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔